خراسان، آج سے بنو امیہ کا ظلم ختم ہونے والا ہے۔ یہ سیاہ جھنڈے علی کی اولاد کے جھنڈے ہیں۔ جو ساتھ دے گا جنت اس کی، جو پیچھے رہے گا تاریخ اسے کبھی معاف نہ کرے گی۔ یہ الفاظ تھے ابو مسلم خراسانی کے، اور سال تھا 747 عیسوی، رجب کا مہینہ۔ ابو مسلم خراسانی نے سیاہ جھنڈے لہرا دیے تھے اور مرو کا میدان ان جھنڈوں سے بھرا ہوا تھا۔ ہوا میں ایک عجیب سی خاموشی تھی، جیسے آسمان بھی سانس روکے کھڑا ہو۔ تلواریں چمک رہی تھیں، گھوڑے دوڑ رہے تھے۔ ابو مسلم خراسانی نے اپنے گھوڑے پر سے جھک کر زمین کو چھوا، پھر سر اٹھایا اور بلند آواز میں پھر سے پکارا، کیا تم ساتھ دو گے؟ اس کے سوال کی دیر تھی کہ ہزاروں تلواریں ایک ساتھ آسمان کی طرف اٹھیں۔ لبیک کی آوازوں نے پہاڑوں کو ہلا دیا۔ دوسری طرف دمشق کے شاہی محل میں اموی خلیفہ مروان دوم دربار میں بیٹھا تھا، بلا کا ذہین، سمجھدار اور لاکھوں مربع کلومیٹرز پر پھیلی بادشاہت اور خلافت کا مالک۔ لیکن آج اس کی آنکھوں میں خوف تھا اور اس کے حواری سازشوں میں گھرے ہوئے تھے۔ اس کے سامنے ایک بڑا نقشہ پھیلا ہوا تھا، جس پر سرخ سیاہی سے خراسان سے دمشق تک ایک لکیر کھینچی جا رہی تھی۔ وزیر سر جھکائے داخل ہوا۔ حضور، مرو میں ابو مسلم نے کھلم کھلا بغاوت کا اعلان کر دیا ہے۔ اس کے جھنڈوں پر لکھا ہے الرضا من آل محمد۔ مروان نے دانتوں تلے ہونٹ دبایا۔ الرضا من آل محمد یعنی ہم اہل بیت سے نہیں۔ وزیر خاموش رہا۔ مروان اٹھا، تلوار اٹھائی اور نقشے پر زور سے ماری۔ میں خود جاؤں گا، اس خراسانی کا سر کاٹ کے لاؤں گا۔ ادھر کوفہ کی ایک تنگ اندھیری کوٹری میں لالٹین کی مدھم روشنی میں بیٹھا تھا ابو العباس۔ پورا نام عبداللہ بن محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس۔ بنو ہاشم کا یہ جوان شیر عباس بن عبد المطلب کا پوتا صرف 27 بہاروں کا تھا، مگر چہرے پر وہ جلالی عزم جھلک رہا تھا جو کربلا کے بعد سے اہل بیت کے دلوں میں دبی آگ بن کر سلگ رہی تھی۔ اس کے سامنے چچا داؤد بن علی اور چند معتمد ساتھی سر جھکائے بیٹھے تھے۔ کمرے میں خاموشی ایسی تھی کہ سانس کی آواز بھی سنائی دیتی تھی۔ ابو العباس کی آنکھوں میں 70 برس کا انتقام چمک رہا تھا۔ وہ آگ جو یزید کے ہاتھوں حسین کے لہو سے بھڑکی، حجاج کے کوڑوں سے تیز ہوئی اور اب بنو امیہ کے تخت کو جلا بھسم کرنے کو تیار تھی۔ آج وہ صفا بننے والا تھا۔ ابو مسلم نے خراسان فتح کر لیا، اب ہمارا وقت ہے۔ میں اس نے آہستہ مگر پتھر گرنے والی آواز میں کہا۔ چچا داؤد نے پوچھا، انتقام کتنا لینا ہے؟ ابو العباس نے مسکرا کر جواب دیا، جتنا خون بنو امیہ نے بہایا اس سے 1 انچ بھی کم نہیں۔ سب کے چہرے انتقام کی آگ سے سرخ ہو رہے تھے۔ ابو العباس نے خراسانی کو لکھا، دمشق فتح کرو، باقی میں دیکھ لوں گا۔ مسلم دنیا میں اضطراب پھیل چکا تھا۔ امیہ سلطنت کے دور دراز علاقوں 3 میں اندرونی اختلافات بڑھ گئے۔ عراق میں قبائل کی خود مختاری، خراسان میں مقامی حکمرانوں کی بغاوت اور یمن کے شہر صنعا کی غیر مطیع فوج نے مرکزی حکومت کی وفاداری کو مسلسل چیلنج کیا، جس نے دفاعی صلاحیت اور حکومتی قوت کو کمزور کیا۔ اعلیٰ طبقے کی عیش و عشرت، شاہی محلات اور دربار کے مہنگے منصوبے عوام میں غربت کے تضاد کو بڑھا رہے تھے۔ شہروں میں امن قائم رکھنے کے لیے فوجی گشت اور مال جمع کرنے کی سختی بڑھتی گئی، جس نے عوام میں نفرت اور حکومت کے خلاف اضطراب پیدا کیا۔ بنو امیہ کی سلطنت جو اسپین سے سندھ تک پھیلی ہوئی تھی، اب لرز رہی تھی۔ محلات میں جشن کی جگہ خوف چھایا ہوا تھا۔ دیواروں پر سناٹے اور ہر گوشے میں سازشیں اور خفیہ منصوبے گردش کر رہے تھے۔ عوام میں بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ دمشق کے بازاروں میں تاجر سرگوشیوں میں بات کرتے، ہر آنے والے مسافر کو شک کی نگاہ سے دیکھتے۔ قلعہ کی دیواروں پر سپاہیوں کے جوتوں کی آواز خوف کی طرح گونجتی، اور شہر کے ہر کونے میں سازشیں سانپوں کی طرح بل کھا رہی تھیں۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اگلا لمحہ کس کا آخری ہے۔ دمشق سے کوفہ تک ہر دل میں حجاج بن یوسف کے کوڑوں کی جلن ابھی تازہ تھی، جب اس نے عراق کو لہو میں نہلایا تھا، اور کربلا کا وہ سیاہ دن جہاں حسین کا لہو ریت پر بہہ کر بھی ابھی تک چیخ رہا تھا۔ ہر سینے میں انتقام کی آگ بھڑکا رہا تھا۔ یہ زخم اب بغاوت بن چکے تھے۔ خراسان سے آنے والی خبریں جنگل میں آگ کی طرح بھڑک رہی تھیں۔
हर सो अबू मुस्लिम खुरासानी का नाम गूंजा तो दिलों में खौफ की लहर दौड़ गई। सियाह झंडों वाला तूफान दमिश्क की तरफ बढ़ रहा था और हर सांस में मौत की बू आ रही थी। कोई नहीं बचने वाला था। साल 749 ईस्वी की खिजा में मरवान दूम मूसल से रवाना होकर ज़ाब की तरफ बढ़ा। वो सियाह झंडों वाले लश्कर को दमिश्क पहुंचने से पहले ही रोकना चाहता था। उसके दिल में यकीन था कि वो अबू मुस्लिम खुरासानी को कुचल डालेगा। अबू मुस्लिम खुरासानी का लश्कर सियाह परचम बुलंद किए घोड़ों के समों की ज़रब लगाते हुए बढ़ रहा था। वो जानता था कि फैसला ज़ाब के किनारे होना है। रातें दुआओं में गुजर रही थीं, दिन तलवारें तेज करने में। दोनों लश्कर आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रहे थे। फ़ज़ा में मौत की महक फैल चुकी थी। आखिर का वो फैसला कुन दिन आन पहुंचा था। साल 749 ईस्वी की सर्द सुबह ज़ाब के किनारे धुंध फैली हुई थी। दोनों फौजें एक दूसरे के सामने खेमाए जिंद थीं। दिल खौफ से धड़क रहे थे। फौजियों के कदमों की आहट सुनाई दे रही थी, गोया मौत सरगोशी कर रही हो। सहर की अजान अभी ना उठी थी कि दोनों लश्करों की नजरें आपस में टकराएं। मरवान दूम ने 50,000 का लश्कर सफ़ों में खड़ा किया। नेज़ों का जंगल और झंडों की कतारें लहरा रही थीं। उसने घोड़े पर बैठकर अपने सिपाहियों के चेहरों को परखा। अबू मुस्लिम खामोश खड़ा था। उसकी तलवार नयाम में थी। उसकी स्याह पोश फौज खामोश खड़ी थी। हर आंख खौफ और जुज्बे का अजीब इम्तिजाज पेश कर रही थी। शायद सब जानते थे कि आज बहने वाला खून तारीख का धारा बदल देगा। मरवान ने सिपह सालार से ललकार कर कहा, आज इन गुलामों को ज़ाब की मछलियों का चारा बना दो। ढोल बजे, घोड़े हुननाए, नेज़े उठे। मगर जैसे ही सफ़ें टकराएं, उमैया फौज के कदम डिगमगाने लगे। बहुत से सिपाहियों ने चुपके से स्याह पट्टियां बांधकर रुख बदल लिया। वही सिपाही जो कल तक बनु उमैया के लिए जान नछावर करते थे, आज हुज्जाज के कोड़ों और करबला की याद ने उनके दिल मोड़ दिए। नेज़े नीचे गिरे, ढालें छोड़ दी गईं। मरवान ने देखा तो आंखें फट गईं। वो चीखा, गद्दारों! मगर तलवारों की गूंज में उसकी आवाज दब गई। अबू मुस्लिम ने तलवार बुलंद करके हुक्म दिया, आगे बढ़ो। सियाह झन्नों का सैलाब टूट पड़ा। तीरों की बारिश हुई, नेज़ों की सनसनाहट गूंजी। उमैया फौज सफ दर सफ बिखरती गई। सिपाहियों की चीखें, भागते घोड़े, गिरने की आवाजें। शाम तक ज़ाब का पानी खून से सुर्ख हो चुका था। मरवान शदीद जख्मी हुआ। उसका घोड़ा लड़खड़ा कर गिरा, मगर 2 वफादार सिपाही उसे बाजू से पकड़कर अंधेरे में ले भागे। पीछे दरियाए ज़ाब का किनारा गवाह था कि बनु उमैया की कमर एक ही दिन में टूट गई। मरवान भाग रहा था और मौत तलवार लिए उसके पीछे साया बनकर चल रही थी। दमिश्क के अजीम दरवाजे ज़ाब की शिकस्त की खबर सुनते ही खुल गए। अबू मुस्लिम की स्याह पोश फौज घोड़ों पर सवार शहर में दाखिल हुई। सबसे पहले जामे उमवी की मीनारों पर स्याह परचम लहराए गए। अवाम दीवानों की तरह सड़कों पर उमड़ आए, आंसू बहाते चीख रहे थे। औरतें दूध पीते बच्चों को कंधों पर उठाए रो रही थीं। बनु उमैया का जोर टूट गया। बूढ़े सजदारेज हो गए, नौजवान तलवारें लहरा रहे थे। शहर में एक अजीब जुनून था, जैसे 70 बरस का गम एक लम्हे में निकल रहा हो। अबू मुस्लिम ने घोड़े से उतरकर बुलंद आवाज में ऐलान किया, ऐ अहले दमिश्क, कोई लूटमार नहीं, किसी औरत को कोई हाथ न लगाए। उसकी आवाज से गोया हर दिल को सुकून मिला। शहर के चप्पे चप्पे से उमैया हवारियों को जंजीरों में जकड़ कर लाया गया। अवाम ने थूका, पत्थर मारे, मगर अबू मुस्लिम ने रोका। इंसाफ खलीफा करेगा और हमारा हकीकी खलीफा पहुंचने वाला है। अबू मुस्लिम खुरासानी ने कलम उठाया और अबू लब्बास अस्सफ़ा को खुफिया पैगाम लिखा, आ जाइए, दमिश्क आपका हो चुका है, अब इंतकाम का वक्त करीब है। पैगाम को बाज के पाँव में बांधकर रवाना किया गया। कूफा में सफ़ा ने खत पढ़ा तो आंखें चमक उठीं। दिल में करबला का खून उबल पड़ा। उनकी आंखों में इंतकाम की चिंगारियां जल रही थीं। उन्होंने घोड़ा तैयार करवाया और रातों रात दमिश्क की तरफ चल पड़े। 750 ईस्वी, रबीउल अव्वल का महीना। अबू लब्बास अस्सफ़ा बाबुल जाबिया से दमिश्क दाखिल हुए तो जामे उमवी में लाखों का मजमा था। लोग रो रहे थे। 70 बरस का इंतजार खत्म हो रहा था। मिंबर रसूल पर चढ़कर उन्होंने पहला खलीफा खुतबा पढ़ा।
आवाज में लर्जिश थी मगर अल्फाज फौलाद के। वो मुस्कुराए, आंखें सुर्ख हो गईं, फिर बुलंद आवाज में बोले, आज से अब्बासी दौर शुरू हुआ। बनो उम्मिया ने जो खूने हुसैन बहाया, हज्जाज ने इराक को नहलाया, इसका बदला लिया जाएगा। जामे मस्जिद गूंज उठी, तलवारें निकलीं। लब्बैक या सफ़ा की सदाएं आसमान को चीर गईं। अबू लब्बास सफ़ा और अबू मुस्लिम खुरासानी के सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि बनु उमैया का मुस्तकिल खात्मा कैसे किया जाए ताकि वो दोबारा सर ना उठा सकें। सफ़ा ने एक खतरनाक मंसूबा बनाया। उसने तमाम उमैया शहजादों, उमरा और उनके खानदानों को दावत अमन भेजी। आओ, हम तुम्हें माफ़ करते हैं, एक ज़ियाफ़त है, सब आ जाओ। दमिश्क के कसरे खजरा में ज़ियाफ़त सजाई गई। लंबे दस्तरखां पर खाने पड़े थे। बनु उमैया के इसी बड़े बड़े शहजादे आए। उन्हें यकीन था कि अब्बासी उन्हें माफ़ कर देंगे। सफ़ा ने खुद सबको बिठाया, मशरूब पिलाया, खाना खिलाया। फिर अचानक दरवाजे बंद हो गए। सफ़ा खड़ा हुआ और बोला, आज वो दिन है जिसका हम 70 बरस से इंतज़ार कर रहे थे। उसने ताली बजाई। चारों तरफ से स्याह पोश सिपाही तलवारें लहराए अंदर आए। चीखें गूंजी, खून के फवारे छोटे। चंद मिनटों में दस्तरखान सुर्ख हो गया। शहजादे कत्ल हुए। सफ़ा ने खुद एक बूढ़े उमैया शहजादे का सर कलम किया। वो बूढ़ा करबला के वक्त का गवाह था। उसने मरते मरते कहा, तुम भी वही कर रहे हो जो यजीद ने किया था। सफ़ा ने जवाब दिया, नहीं, हम बदला ले रहे हैं। मगर दूसरी तरफ मरवान दुवम अभी जिंदा था। वो मिस्र की तरफ भागा। उसके साथ सिर्फ चंद सौ वफादार रह गए थे। अबू मुस्लिम ने पीछा किया। हर शहर में ऐलान था, जो मरवान को पकड़वा देगा उसे 10,000 दिरहम। वही साल 750 ईस्वी अगस्त का महीना, बौसीर नामी गांव के करीब एक पुराने चर्च में मरवान छुपा बैठा था। उसकी दाढ़ी बढ़ चुकी थी। अचानक दरवाज़ा टूटा। अबू मुस्लिम खुरासानी के सिपाही अंदर आए। मरवान ने तलवार निकाली, मगर अब वो बहुत कमज़ोर हो चुका था। चंद खाली वार किए और गिर पड़ा। एक सिपाही ने उसका सर तन से जुदा किया। सर को कपड़े में लपेटकर सफ़ा के पास भेजा गया। सफ़ा ने सर को देखा और कहा, अब बनु उमैया की बादशाहत वाकई ख़त्म हुई। मगर ये सिलसिला यहीं ना थमा। इसी साल की एक खौफनाक रात सफ़ा ने कसरे खजरा में बैठकर हुक्म सुनाया, बनु उमैया की हर कब्र खोद दो, हड्डियां निकालो, आग लगाओ। उसकी आवाज़ में करबला की चीख गूंज रही थी। कब्रिस्तान में मशलों की रोशनी में कुदालें जलने लगीं। हुज्जाज बिन यूसुफ की कब्र खुली तो हुआ में खून की बू उठी। अब्दुल मलिक, वलीद, यजीद की हड्डियां बाहर निकाली गईं। लकड़ियां जमा हुईं, तेल छिड़का गया। आग भड़की तो आसमान सुर्ख हो गया, जैसे फरात दोबारा बह रहा हो। सिर्फ उमर बिन अब्दुल अजीज और हजरत मुआविया की कब्रें सलामत रहीं। एक नौजवान सिपाही ने हैरत से पूछा, या अमीरुल मोमिनीन, मुआविया को क्यों छोड़ा? सिफा ने सर्द लहजे में जवाब दिया, वो सहाबी रसूल थे, इसलिए नहीं। बस इस तरह बनु उमैया का इक़्तिदार एक खूनरेज़ अंजाम को पहुंचा। बनु उमैया की 90 बरस की बादशाहत एक खून आलूद शाम को डूब गई। उनकी अज़ीमुश्शान इमारात, जामे उमवी, कसरुल हैर सब अब्बासियों के कब्जे में आ गए। अंदलुस में अब्दुर्रहमान बिन मुआविया, जो अब्दुर्रहमान अव्वल कहलाता है, किसी तरह बच निकला। मगर बाकी सब इलाके बशमूल हिजाज, मिस्र, शाम, इराक, फारिस, खुरासान सब अब्बासियों के हाथ में आ गए। इस तरह बनु अब्बास ने 750 ईस्वी में खिलाफत संभाली, जो अगली कई सदियों तक चलती और फलती फूलती रही। जो काम अबू मुस्लिम खुरासानी ने और सिफा ने मिलकर किया, वो तारीख में हमेशा के लिए लिखा जा चुका था। आज जब भी कोई दमिश्क के जामे मस्जिद में जाए और उसकी दीवारों को छुए, तो ऐसा महसूस होता है कि उन दीवारों में अब भी बनु उमैया की छाप, सिफा की मुस्कुराहट और अबू मुस्लिम की तलवारों की आवाज गूंज रही है। ये तारीख नहीं, खून से लिखी हुई हकीकी दास्तान है, और खून की स्याही कभी मिटा नहीं करती।